Okay, so Thanks. basically, so it's basically Friendship Day, Valentine's Day, and Father's Day. All three things happening together on Good Friday. And why is that? Because we know that. So Sandeep, do you want to do that piece, and then I'll ये move to तो जैसे कि हम गुड फ्राइडे के दिन फ्रेंडशिप डे और तो बोलते हैं वैलेंटाइन डे और फादर डे हम मना रहे हैं, ये मतलब इकट्ठा ही गुड फ्राइडे में आ जाता है. And why we say that is because the word says a friend is one who lays down his life. और हम इसलिए कहते हैं क्योंकि कि वचन में लिखा है कि सही दोस्त वही है जो अपना जीवन दूसरे के लिए न्यौछावर कर देता है. And Valentine's Day we celebrate love, and the word और says that जो वैलेंटाइन डे उस दिन हम प्रेम को मतलब हम सेलिब्रेट करते हैं उस दिन. And true love is always it does more than what the other person deserves. You always act in the best interest of the other person. और जो सच्चा प्रेम जो होता है वो हमेशा दूसरे के लिए प्रति मतलब अच्छा करता है और दूसरे के प्रति हमेशा भला होता है. And Father's Day we celebrate or we honor our fathers because they always do whatever is required for the best interest of their children. और हम जो फादर डे हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो पिता होता है वो हर चीज वो करता है जो एक बच्चे को या परिवार को जरूरत होती है, तो हम इसलिए जो फादर डे वो भी इसलिए मनाते हैं. So today the reason why it's all of these things together is because we have our Father in heaven who wants the best for us, and the best for us is to spend eternity with him. और हम इन तीनों दिनों को इसलिए मना रहे हैं, और स्पेशली जो क्योंकि जो हमारा पिता है जो स्वर्ग में वो एक भला पिता, और वो चाहता है कि हम उसके साथ अनंत काल तक उसके साथ हम जीवन उसके साथ बिताएं. And for that he sent his only son, who's Jesus Christ, who's our friend, to die for our sins on the cross. और उस पिता ने अपने बेटे यीशु मसीह को, जो हमारा दोस्त है, मित्र है, उसको भेजा, और यीशु मसीह ने अपनी जान दी हमारे पापों के लिए. And he did all that because of his love for us, because it says in John 3:16 that God so loved the world that he gave his only son so that we don't perish for our sins. और इसलिए यीशु मसीह ने ऐसा किया क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, और जैसे वचन में यूहन्ना 3:16 में लिखा भी है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. So that's the reason why today is we call this day as Good Friday. और तभी हम इस दिन को हम गुड फ्राइडे बोलते हैं, मतलब भला शुक्रवार. Yeah, and that's the reason why we celebrating Father's Day, Valentine's Day, and Friendship Day on the same day today. और तभी हम आज के दिन फादर्स डे, वैलेंटाइन डे और फ्रेंडशिप डे हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसी के बीच आ जाता है. Okay, so thank you for joining us. We'll start the service. I'd request Malik Uncle to start with a prayer. Father God, we praise you and we give you glory, Lord God. We thank you, Lord God, for helping us all to attend this Good Friday service. Father God, Lord, take control of the entire service for your glory, and help us, Lord, all of us, Lord, to grow with the growth that comes from you, and you take glory from the life of all of us. We ask and we thank you in Jesus' name we pray. Amen. Now I'd request, we have a video that we want to play. I'd request that the video be played now. Does it seem ironic that one of the most tragic days in Christian history is called Good Friday? The New Testament describes a day of suffering that ends in Jesus' crucifixion, events that sound like anything but good. Since the 3rd century, the English and the Dutch have used the term Good Friday,
which etymologists say is likely an alteration of the Germanic word Guds, which means God's or holy. The rest of the world calls the day Holy Friday. History of words aside, theologians teach us that in Jesus' terrible death, God's good purpose of loving and redeeming the world is proclaimed. On Good Friday, we remember Jesus' death on a cross and look forward to his resurrection on Easter Sunday. Now I'd invite Brother Jason for the word. Hi all. Good to come together as one body and one family. All right, and I'm so happy how God's theme of his love is flowing through. परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हम एक परिवार आज इकट्ठा हुआ है और उस परमेश्वर के प्रेम को आज हम बांट रहे हैं बीच में. It's amazing, because it's so confusing sometimes. As we started off saying that we are celebrating many things. और कई बार ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है कि जब हम कई बार कहते हैं कि आज हम बहुत सारी चीजों को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. And also, it's confusing when we call the word Good Friday. और हम इस जो कहते हैं जैसे गुड फ्राइडे हम जब कहते हैं. So, and why is it good? We were trying to elaborate, but because I don't know. क्यों ये भला और गुड और अच्छा फ्राइडे है? Right. So being an engineer or mathematician, when you see a plus sign, you have to see a minus sign also. और जब हम अगर कोई जो मैथ पढ़ता है उसे पता है कि अगर प्लस होता है तो एक माइनस साइन भी होता है. So is there a Black Friday? तो क्या मतलब गुड फ्राइडे की जगह कोई बैड फ्राइडे भी होता है या ब्लैक फ्राइडे भी होता है? Black. So that everybody knows, right? Yes. Because the biggest sale. Yes. तो काला दिन भी होता है. Yes. And then the confusing question comes: when a person dies, why is it good? और जब ये सवाल आता है कि अगर कोई व्यक्ति मरा है तो ये गुड कैसे हो सकता है? And that is the change. That is the change and the good बदलाव है, news. यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है और यही एक बहुत ही अच्छी सुसमाचार है. So Arun started off by different kinds of love. So basically there are many और types. जैसे ब्रदर अरुण ने बड़े प्रकार के प्रेम के बारे में बोला और जैसे जो प्रेम है वो 4 प्रकार का होता है और 4 प्रकार के प्रेम को आज हम देखेंगे. Yeah. So the Greek has a word called eros, number 1. और एक जो एक ग्रीक वर्ड जो है वो एरोस करके जो प्रेम का दर्शाता जो पहला जो है. Second word is stronge. और दूसरा जो स्ट्रॉन्ज करके जो शब्द है जो प्रेम को दर्शाता है. Third is philia. और फिले जो तीसरा शब्द है जो प्रेम को दर्शाता है. And the fourth one is agape. और जो चौथा शब्द है वो है अगापे, वो भी प्रेम को दर्शाता है. Right. And all have meaning and its purpose and its particular place. और इन सभी चारों के चारों जो शब्द हैं जो प्रेम के इनका मतलब है. Who can say no to love? कौन प्रेम को ना बोल सकता है? How can you not enjoy love? और मतलब हम प्रेम को मतलब असंभव है कि प्रेम का मजा ना लिया जाए. How can you not celebrate love? और क्यों हम प्रेम को क्यों नहीं हम मनाएं? क्यों हम मतलब हम अपने आप को रोक नहीं सकते प्रेम को सेलिब्रेट करने से. And we are celebrating that love. तो क्या आज हम उस प्रेम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं? Tell me one thing, when you are in deep love, can you be silent like this? और मुझे एक बात बताएं कि जब आप प्रेम में होते हैं तो क्या आप चुप रह के बैठ सकते हैं? I don't know about you, but I can't. I'll be jumping on top. मुझे आपका तो पता नहीं, पर मैं नहीं बैठ सकता चुप करके. I mean, many of my friends here, especially Neeraj,
would have seen when I met my lady. और How जैसे joyful I was. और मेरे को पासवान को, पास्टर नीरज को भी पता है, और जब मैंने जो मेरी जो वाइफ है जो उनको जब मैं मिला था पहली बार, तो कितना मैं खुश था, आनंदित था. Oh, what a lovely incident was that. और कितना ही सुंदर वो समय था. When I didn't meet my love, I used to sing a song. और जब मैं नहीं मिलता तो मैं गाना Where गाता is था, my love? और मैं कहता था कहाँ है मेरा And प्यार. when I met her also, I sang a song. और जब मैं उनको मिला तब भी मैंने गाने गाए. So we talked about eros, which is an erotic physical attraction love, which is purely for marriage. और एक जो एरोस, जो पहला शब्द है एरोस, जो प्रेम है, ये मतलब शादी को दर्शाता है. जब शादी वाला जो प्रेम होता है, हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप वाला, हस्बैंड वाइफ वाला, वो प्रेम है. And that is also there in the Bible. और ये प्रेम भी वचन में है. And the second one is the family love. और दूसरा जो प्रेम है, वो जो पारिवारिक प्रेम है, वो दूसरा प्रेम वो है. Yeah, we saw in Bible with Martha, Mary. और हमने देखा वचन में, हम देखते हैं बाइबल में कि मार्था, मैरी The आपस में church कितना kind प्रेम of करती है. love that we show with each other. और जो कलीसिया में हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो वाला प्रेम. The third one is philia, the brotherly love. और तीसरा जो फिले, जो लव है, प्रेम है, वो जो भाइयों के बीच जो प्रेम होता है, वैसा प्रेम. And Bible it says, I like the word, be devoted to each other in brotherly affection. वो जैसे वचन में लिखा है, एक दूसरे के प्रति डिवोटेड रहो, एक दूसरे के प्रति अधीन, मतलब आपस में रहो, प्रेम करने में, एक दूसरे को आदर देने में, जो हिंदी में वर्ड है. Oh, is it written? It's written for people. और ये Okay. जो लिखा है Romans, रोमियो 12:10 में. okay, if anybody wants a reference, it's in Romans 12:10. It says, be devoted. और वचन में लिखा है कि परस्पर आदर करके एक दूसरे से बढ़ चलो. And second is the brotherly love. The third one. Can you say again? अभी सुन नहीं पाया मैं. I can't hear you. We are moving to the third one, which is the brotherly love, philia love. और जो तीसरा जो प्रेम है, जिसके बारे में हम अब देख रहे हैं, वो फिले, जो भाईचारे वाला प्रेम. Right. And many of you have seen with each other that how much close we are with each other, like more than brothers and sisters. और हमने वो प्रेम बहुत बार देखा अपने कलीसिया में, आपस में भी, कि जो हम कितने हम एक दूसरे के करीब हैं और कितना हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, भाईचारे वाले प्रेम में. And that is the expression of brotherly love. और वो मतलब दर्शाता है कि जब हम ऐसा करते हैं, वो दर्शाता है, ये जो फिले है, जो परमेश्वर, जो भाईचारे वाला प्रेम है, वो दर्शाता है. And sometimes all the time we'll say, hey, after becoming Christians, right, we'll say, hey, we should have only one love, but all love exists. और जब हम कई बार मसीह में जब हम आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि सिर्फ एक ही प्रेम है, मगर ये सभी जो प्रेम, ये जो 4 प्रकार के प्रेम है, ये भी प्रेम है. And the last one, which is godly love, which is pure. और ये जो लास्ट जो शब्द है, जो प्रेम दर्शाता है, अगापे, जो प्योर, जो परमेश्वर का प्रेम है, ये दर्शाता है. Unconditional. और ये जो प्रेम है, ये जो शब्द है अगापे, जो परमेश्वर का प्रेम दर्शाता है, ये शब्द, और ये ऐसा प्रेम है जो बिना ना खत्म होने वाला प्रेम. Third is sacrificial. और ये the part of that. अपनी भी परवाह नहीं करता और अपने आप को भी दे देता है, ऐसा प्रेम है. And the fourth one is perfect. और ये सिद्ध प्रेम है, जो परमेश्वर का प्रेम है अगापे, ये सिद्ध प्रेम है. So everybody repeat after me to just enjoy and celebrate the attributes of this pure love. और मैं चाहता हूं कि आज आप इस प्रेम को, जो परमेश्वर का प्रेम है, और आज जितने भी प्रेम हमने देखे, इनको आज आप सेलिब्रेट करें आज. Yes, and let's be vocal about it, right? और Let's आज say, बोलें Lord, अपने your मुंह से. love is pure.
और आज बोले परमेश्वर आपका जो प्रेम है वो कितना ही बिल्कुल साफ और कितना ही पवित्र है। आप पवित्र है, लॉर्ड आपका प्यार पवित्र है, इट्स प्योर। परमेश्वर आपका प्रेम पवित्र है, I वो believe कितना that you प्योर are लव है। sitting in your seats or declaring this loud. Lord, your love is unconditional. और आप इस समय मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी बोले इस समय बोल सकते हैं कि परमेश्वर आपका प्रेम जो है कभी ना खत्म होने वाला प्रेम है। And your love is sacrificial. और परमेश्वर आपका प्रेम जो है खुद को देने वाला प्रेम है, खुद को चढ़ा देने वाला प्रेम है परमेश्वर। And your love is pure. और आपका प्रेम सचमुच पवित्र प्रेम है परमेश्वर। Oh, if God loves that and he wants to share that love with you and me. और परमेश्वर अपना यही प्रेम हमसे बांटना चाहता है। You must have tasted a little, but we all want more. शायद आपने थोड़ा उस प्रेम को चखा होगा, पर हम सभी को वो प्रेम और चाहिए अपने जीवन में। So my friends, if you have tasted little, ask for more. अगर मेरे भाइयों बहनों, अगर आज आपने उस प्रेम को थोड़ा चखा है, परमेश्वर के प्रेम को, तो उस प्रेम को और चखें। Can you imagine a creator loving its creation? क्या आप सोच सकते हैं कि जो बनाने वाला परमेश्वर है वो अपनी बनाई हुई चीज को कितना प्रेम करता है? Just imagine you made a table and you're loving the table, hugging the table. और सोचें कि जैसे आपने एक टेबल जो होता है उसको बनाया और आप उस टेबल के साथ लिपट गए और आप बहुत प्यार कर रहे हैं उस टेबल को। Imagine some kids go and hug the leg of the table, right? और जो छोटे बच्चे कई बार टेबल को जैसे सोचें कि जब जैसे छोटा बच्चा टेबल की टांग को पकड़ के चिपक जाता है उसके साथ, वैसे। And that is why God says, because you are worthy. He found the creation to be wonderful, human beings to be wonderful, and that's why he wants to show. तभी परमेश्वर की नजर में आप बहुत ही बहुमूल्य और कीमती हैं, तभी परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है। Thank you, Lord. You chose us to be loved. धन्यवाद परमेश्वर कि आपने मुझे चुना और आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं। Let me tell you, I've heard many Christians saying, "Oh, enjoy the love," right? And sometimes I would say, I know God is love with my mind, but when you experience with your heart, there's nothing like this. और जब आप उस प्रेम को, परमेश्वर के उस प्रेम को अनुभव करेंगे, उस अनुभव से ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है हमारे को। I have a wonderful earthly father. Could you hear Sandeep, or I missed connection? Am I audible? Yes, Jason, we can hear you. Yeah, thank you. We can't hear you. Okay, we'll wait for a second. Sandeep is not audible. Okay. Okay, no worries. So I'm telling you, a lot of people say God is a father. You have to taste and see. Bhai, can you hear me? Yeah, I can Perfect, hear you now. Perfect, Yeah, lovely. So I was saying, many times with our mind, we'll say, hey, you have to enjoy God as your father. I have a wonderful earthly father. और कई बार हम कहते हैं कि अपने दिमाग में कि हमें परमेश्वर को अनुभव करना चाहिए, और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा एक बहुत ही अच्छा, मतलब दुनियावी पिता भी मेरा बहुत अच्छा है। And let me tell you, there is one night that when मैं बताना चाहता हूँ एक दिन एक रात में, yes, when I was in worshiping, there is this amazing, words can't describe. There is the feeling of this wonderful love of God being my heavenly father with unlimited access of everything. और जब मैंने इस अनुभव को, परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किया कि वो मेरा भला पिता है और इतना मेरे को, मतलब पूरी छूट है उसकी उपस्थिति में मेरे को, तो मैं उससे अद्भुत मेरे जीवन में एहसास नहीं था। Oh, I kept singing for 3 days. और मैं 3 दिन गाता रहा परमेश्वर के प्रेम को। I got up in the night and said, God, you're so good. और मैं रात को उठ के भी गाता था, परमेश्वर तू बहुत ही भला है।
I know you have experienced a little, but there is always more. मैं जानता हूं कि आपने उस प्रेम को चखा हुआ है, पर बहुत ज्यादा है, आपको और भी चखना बाकी है। I know many of your hearts are thirsty, and even now, because when I was praying, I could sense that you have an intense desire. और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत हैं जिनके दिल जो आज हैं भूखे हैं परमेश्वर के उस प्रेम के लिए। And do not go today without being filled. Make a decision. और आज यहाँ से ना जाएं जब तक आप उस प्रेम से भर ना जाएं परमेश्वर। All of you are here by purpose or by friendship or could be anything else. But me as a और friend आज- today, और आज अब यहाँ पे हैं एक योजना के अनुसार, चाहे आपके दोस्तों ने आपको लाया हुआ है, चाहे आप ऐसे आए हो, मगर आप एक योजना के अनुसार यहाँ पे। enjoy, ask, and then only go. और अनुभव करें, एंजॉय करें उस प्रेम, परमेश्वर के प्रेम को, और उस परमेश्वर से मांगे और आगे चलते जाएं। And I believe you're saying yes. और मैं विश्वास करता हूं कि आज आप परमेश्वर को हाँ बोल रहे हैं। And coming back, hey, how is this good again? Because I shared about God's love. और हम मतलब ये जो परमेश्वर का प्रेम है कि ये भला कैसे है। And then you have to think about man, you and me, have something not great in our hearts. और जब हम अपने बारे में सोचते हैं और कई बार देखते हैं कि जब हम इंसान है, हमारे दिलों में कई बार कुछ इतनी अच्छी चीजें नहीं है। I mean, many times I thought I was the perfect man as when I was growing up. और जब मैं बढ़ रहा था आगे, जब छोटे होने से जब मैं बड़ा हो रहा था, तो कई बार मैंने सोचा था कि मैं बहुत ही सिद्ध व्यक्ति हूँ। I never cheated. मैंने कभी भी किसी चीटिंग नहीं की है, गलत नहीं किया है। I never stole money. मैंने पैसा नहीं कभी चुराया किसी का। I don't go beg with people. और मैं ना भीख मांगता हूँ जाके। I'm doing well. मैं बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ। So why everything is good. और तब सब कुछ बढ़िया है मेरे जीवन में। And then one day, when your best friends get more marks, grades than you, there is something in your heart which is not good. You don't express it. जब एक दिन जब आपके दोस्त के नंबर आपसे ज्यादा आ जाते हैं और आपके दिल में कुछ बेचैनी होना शुरू हो जाती है। Suppose your close friend gets a better rating at work than you. और आपके क्योंकि आपका जो नजदीकी मित्र है, उसके काम में ज्यादा तरक्की हो रही है, आपकी नहीं हो रही। And you may not say it, but you will say, "Oh, wonderful, congrats! I'm so happy for you." But in your heart, there is something down. और कई बार आप कहते हैं हाँ बहुत ही मुबारक हो आपको, मगर आपके दिल में कहीं ना कहीं मतलब अजीब सा एहसास होता है। Isn't it? क्या ये सही बात नहीं है? And sometimes even after being a Christian. और कई बार मसीह होने के बाद भी ऐसे अनुभव होते हैं। Let me ask you, can impure thing have love with something that is pure? और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो अपवित्र चीज है, ये जो हमारे अंदर, और क्या ये प्रेम के साथ ये चल सकती है? I'm not talking about clear things of how much lustful thoughts we have, anger thoughts we have, betraying thoughts we have, jealousy thoughts we have. I'm not touching any of that, which many of you already have recognized those things in a person. और मैं गलत विचारों की बात नहीं कर रहा है, जेलसी वाले विचारों की बात नहीं कर रहा। मैं क्या बोलते हैं, वो हम सभी जानते हैं उन विचारों को। So to Indians or Asians, I don't have to tell you, can you fellowship with this pure love? और मुझे बताना नहीं मतलब पड़ेगा आपको कि हमें उस परमेश्वर के उस प्रेम के साथ संगति करनी चाहिए कि नहीं। There is an inborn sin nature in each one of us. और हम सभी को पता है कि हमारे अंदर एक पाप करने वाला जो स्वभाव हमारे अंदर है। Okay, if people say, "Oh, what is telling? I am still good." मगर कोई सोचेगा कि बहुत सारे कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ। And let me ask you, if you have been with children, do you have to teach a children to be good or you have to teach a children to be bad? मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप बच्चों के साथ रहे हैं
तो क्या आपको बच्चों को सही शिक्षा मतलब आप देते हैं उन्हें, या आप उनको सही सिखाते हैं या बुरा सिखाते हैं? You will always have to train him to be good. हम हमेशा बच्चों को सही शिक्षा के लिए ट्रेन करते हैं। And therefore, knowing this, coming back to God wanted to love because he is pure, he wants to have. He said, hey, I want to make a way to make these people pure because I just love them. और परमेश्वर इतना भला है कि वो हमसे इतना प्रेम करता है, वो चाहता है कि वो अपने बच्चों को जिनसे वो प्रेम करता है उनको वो पवित्र और बिल्कुल प्योर कर दे। Oh, guys, I know you know all this, but celebrate and fellowship by saying, Lord God, thank you for this love, which is और pure, perfect, that you have given to me. मुझे पता है कि आपको ये चीजें पता है, मगर आज मतलब परमेश्वर से संगति करें और बोले हैं परमेश्वर के, परमेश्वर मुझे पवित्र कर, मेरे अंदर और प्रेम पूरा भर। And John 3 says, God so loved the world. और यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। God so loved. परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया। Oh, I love that small suffix. So loved. और मेरे को वो जो वर्ड है इंग्लिश में सो, मतलब ऐसा इतना अद्भुत मतलब प्रेम जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया। That he said, hey, let me get down. Only I can solve it, and I'm sending my son. और परमेश्वर ने बोला कि मैं जाता हूँ नीचे, मैं अपने बेटे को भेजता हूँ ताकि मैं अपने बच्चों की मदद करूं। He didn't call his guard and send. He didn't say phone another friend and said go. परमेश्वर ने अपने गार्ड को नहीं भेजा, कि अपने स्वर्गदूत को नहीं भेजा, या अपने किसी मित्र को नहीं भेजा कि जाके उन्हें बचा। And tell them, hey, if somebody has sinned or if you've done something wrong, you have to be punished. You take a legal case. और हमें पता है अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ गलत करता है तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, हम सभी को पता है ये बात। And let me present that to you again. और मैं इसको फिर बताना चाहता हूँ आपको, आपके सामने रखना चाहता हूँ इस बात को। Okay, this is for spiritual growth. I'm speaking to you. I know you know this, but everybody should stand with me and declare who our God is. और okay, I'm quoting. आज ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप इसको आज अपने जीवनों में घोषणा करें इसकी। Let's move to 1 John 1:5. और पहला यूहन्ना 1:5। And everybody read it loud. और God is the source of life. और यूहन्ना पहला 1:5 जोर से पढ़ें। जो सुसमाचार हमने सुना, तुम सुनते हैं। Abba Father. Yeah, go ahead, read and. Yeah, I can read fully and then you can read in English. Sure. Yeah. जो सुसमाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं। He is light and no darkness in him. परमेश्वर में ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं। I'm speaking to your inner man that God is light and there's no darkness in him. मैं आपके अंदर वाले मनुष्य को आज बोल रहा हूँ कि परमेश्वर ज्योति है और उसके अंदर कोई भी अंधकार नहीं। So unlock your mics and declare this. Let me hear it. और अपने God, you are light. अपने जो माइक है उनको आप म्यूट से हटा सकते हैं और बोलें, परमेश्वर आप ज्योति हैं। God, you are light. परमेश्वर आप कोई भी अंधकार नहीं। Amen. आमीन। I mean, I think no picture can satisfy. So I can share my screen, a short video. मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ। Do I have the right? क्या मैं दिखा सकता हूँ? डेविड को बोल। डेविड, can you help भैया to? Yes, भैया, go ahead. Yeah. Okay. So guys, this has some graphic scenes. It is about the crucifixion scene, which I've said. If anybody has issues, please let me know. If और not, आप देख सकते हैं या ये क्रूसिफिक्शन, मसीह यीशु के जब क्रूस पे चढ़ाए जाने का ग्राफिक्स इसमें आप देख सकते हैं। Now, if you have an issue, please make sure you don't see it. अगर it has blood, it has हाँ, beating, and you can see that. अगर आप ऐसा दर्दनाक सीन नहीं देख सकते, कोई प्रॉब्लम है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं।
just wanted to share, even God, it says that God enjoyed doing this for the love that he had for us. और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के उस क्योंकि परमेश्वर उस आनंद से परमेश्वर भरा हुआ था, क्योंकि जो परमेश्वर इस क्रूस के द्वारा करना चाहता था उसके लिए, उसके कारण। You saw what it was like. और आपने देखा कि कितना गंभीर और कैसा था ये क्रूस का जो कार्य था। He did that because he loved us. और परमेश्वर ने इसलिए किया वो क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है। Let me tell you in other words, right? The people who has given freedom for India, they gave their life for us, and we acknowledge their love for us. For the और land. हम सभी जानते हैं कि जिन लोगों ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी, और हम जानते हैं कि और हम उन सभी से प्रेम करते हैं और हमें ऑनर करते हैं उन्होंने। How many soldiers have given their life so that we may be at peace? और बहुत सारे ऐसे जो हमारे सैनिक हैं जिन्होंने अपना जीवन दिया और ताकि हम शांति से रह सकें। We know another lady called Mother Teresa who gave her life to go and be a touching person to many. और जैसे मदर तेरेसा एक जो बहन थी, उन्होंने अपना जीवन दे दिया कि लोगों को उनके साथ भला करने के लिए। So everybody does. If human beings can do sacrificially, how much more God did? अगर एक इंसान और हम इंसान अपने जीवन को दे सकते हैं, चढ़ा सकते हैं दूसरों के लिए, तो परमेश्वर कितना ही अद्भुत तरीके से चढ़ा सकता है अपने जीवन को या दे सकता है। Just imagine God becoming the table for us. और परमेश्वर जो हमारे लिए मेमना बन गया, जो हमारे लिए मारा गया। Yes. And I mean, if you have loved someone, if the other person doesn't respond, how frustrating is that? और आपको पता है कि जब अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और जो जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपसे अच्छा व्यवहार ना करे, अच्छा रिस्पॉन्ड ना करे, तो कितना दुखदायक होता है। Look, Sandeep is laughing out of earthly joy. और संदीप भाई हंस रहे हैं सुन के। Right? So just imagine, how much you do for your children, and when somebody, we don't have a culture of saying thank you, right? We think that's something not for us. और हम ऐसे एक कल्चर में रहते हैं कि अगर हम किसी के लिए कुछ करते भी हैं या बच्चों के लिए भी कुछ करते हैं, तो हमारा ऐसा कल्चर जहाँ पे हम धन्यवाद भी नहीं बोलते एक दूसरे को। Oh, that is only in corporate offices. और सिर्फ ऐसा ऑफिस में होता है। All is inside. सब हमारे दिल में रहना चाहिए बस। But isn't it amazing? A small action of response would change the dynamics. मगर कितना ही अद्भुत है कि अगर छोटा सा जो स्वभाव मतलब एक छोटा सा आपका एक्शन चेंज कर सकता है हर चीज को। And God, He will not force you. He can, but He will not force you. परमेश्वर जो है वो आपको मतलब अपना शक्ति से आपको करवाता नहीं है चीजें, मगर वो प्रेम करता है और आपको खुद आपके मन से करने देता है। God had to shed His precious blood that we can be free. और प्रभु को अपने बेटे का लहू देना पड़ा ताकि हम आजादी पाएं। God searched for centuries if any man can be used to stand between God and man. He couldn't find any. परमेश्वर ने ढूंढा और कोई भी उसको ऐसा मिला नहीं पूरी जगत में से और पूरे जनरेशन में से कि जो परमेश्वर और इंसान के बीच खड़े होके उनको जोड़ सके फिर। And he didn't lose hope. He said, "Let me send my son, which is part of me." और तब परमेश्वर ने अपने उस बेटे को भेजा। उसने परमेश्वर ने बोला कि मैं अपने बेटे को भेजता हूँ। And even better did not say, "I am the son of the mighty." और उसने पर ये नहीं बोला कि मैं परम प्रधान का बेटा हूँ, तो मैं I'm not Bill Gates' son. मैं बिल गेट का बेटा नहीं, मैं परम प्रधान का बेटा हूँ। In a joking manner, I'm not Ambani's son. मैं कोई अंबानी का बेटा नहीं। Right? He didn't say, "Do you know me? I am the one man." और यीशु ने ये नहीं बोला कि तुम जानते हो मुझे कि मैं किसका बेटा हूँ, मैं कौन हूँ। He humbled himself. It's written. उसने अपने आप को दीन कर लिया। To know that I can have fellowship with my creation, which is beautiful. और क्योंकि उसको ये पता था कि मैं अपनी जो बनाई हुई चीज है, जो मेरे लोग हैं, उनके साथ में संगति कर पाऊंगा और इससे बड़ा आनंद मेरे लिए कुछ नहीं है।
And many of you have responded, but many have to respond even more. और बहुतों ने इसको सुन के या इसको समझ के अपना एक उत्तर दिया है प्रभु को, पर बहुतों ने नहीं दिया. He became the blameless one so that we can stand on it. प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सारा जो दोष डाला गया ताकि हम निर्दोष ठहरें. So imagine, God has done something so that, you can do greater things. और क्योंकि सोचें इस बात को कि परमेश्वर ने कुछ इतना अद्भुत किया है ताकि आप उससे भी बड़ी-बड़ी चीजें कर पाएं. Our freedom fighters of India warred and made India free so that we can make it greater. और हमारे जैसे जो हमारे फौजी हैं, उन्होंने जो आर्मी है, उन्होंने अपने जीवन दिया है ताकि हमारा भारत आजाद हो जाए और बड़े-बड़े कार्य करे हमारा भारत. And imagine if we are sitting, oh, we are still under someone, we are not free. Is it my job to make this nation clear? Is it worthwhile? और अगर हम ऐसा बोलें कि यार हम तो अभी भी उस राजा के अंदर हैं, अधीन हैं, और क्या ये मेरी जिम्मेदारी है अपने देश को महान बनाना, तो क्या वो सही बात होगा? I am nobody. और हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है. But imagine somebody has done amazing things and it is for you and you have to eat of it. और क्योंकि एक ऐसा कार्य किसी ने किया है और आपको उस कार्य का मतलब लाभ उठाना है. Imagine I give you money and says, hey, I give you a check, right? You can use it for your good, and you don't use it. और सोचें कि जैसे कि मैंने आपको चेक दिया है और मैंने आपको चेक दिया है और बोला कि इसको यूज करो, और आप उस चेक को यूज नहीं कर रहे हैं. No, I have to go to the bank, put it in. Why can't somebody come and put it in my mouth? और हम बोलेंगे यार नहीं, मैं बैंक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे करूंगा यार बैंक में जाना, और कोई आएगा नहीं और आपके मुंह में खुद निवाला नहीं डालेगा. I don't want, nobody loves me, I have no one does it. और मैं अब ये बोलूं कि यार कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है, मैं अकेला हूं या कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है. Hey, let me tell you, there is love available. Respond. मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रेम जो है वो आपके लिए यीशु ने किया है, आपके साथ वो अवेलेबल है, आपके लिए मौजूद है, आपके लिए. God so loved the world परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया that he gave his only son, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, that whoever believes, it doesn't say American, African, Antarctican, nothing. He used the word whoever, rich, poor, equal. कोई भी कैसा भी हो अगर विश्वास करे, चाहे अमेरिकन हो या किसी भी अमीर हो गरीब हो, कैसा भी हो, अगर वो विश्वास करे, black or white, tall or short, लंबा काला नीला पीला जो भी कलर का है. Isn't this amazing? Yes, कितना अद्भुत ये चीज है. Whoever believes, जो विश्वास करे. And he said, just believe and you can fellowship for life. और प्रभु ने कहा सिर्फ तू विश्वास कर और तू पूरी जिंदगी उस संगति, उस प्रेम का भागीदार होगा. So I ask of you, what do we do now? तो मैं पूछूंगा कि हम क्या करें अब? How God does, and he has made a bridge for us to enter into that. परमेश्वर यीशु मसीह ने वो जो पिता और हमारे बीच ब्रिज का काम किया, उन्होंने एक पुल का काम किया. यीशु मसीह ने हमारे बीच, उन्होंने एक रास्ता बना दिया, एक ब्रिज बना दिया हमारे और पिता परमेश्वर के बीच. And he has made everything available so that we can move from death to life. और परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया ताकि हम उस ब्रिज को जो प्रभु ने बनाया है उसका इस्तेमाल करके हम मौत से जिंदगी की तरफ मुड़ पाएं. Oh, with love you could conquer death. क्या आप प्रेम, अरे वाह, क्या आप प्रेम से आप तो मौत को भी जीत जाएंगे. Oh, let's move to Hebrews 2 verse 14 and 15. आए इब्रानियों 2 का 14 और 15 पढ़ें. There you can read and then I. और इब्रानियों के 14 में 15 में लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी
उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसके जिसके मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तों में फंसे थे, उन्हें छुड़ा लिया। It's written, death over sin, और लिखा है कि पाप के ऊपर जयवंत, Jesus conquered death. प्रभु यीशु मसीह ने मौत को भी हरा दिया। Does it say it is temporary? क्या ये लिखा है कि वो थोड़ी देर के लिए हराया या कुछ टाइम के लिए? It's written, conquered. It is not saying it is going to conquer, it is done and dusted. प्रभु ने लिखा है कि उसने हरा दिया, ये नहीं लिखा कि आगे जाके हराएगा या कुछ बाद में हराएगा, नहीं, उसने हरा दिया, डन डील है। Wonderful. Isn't that amazing? He has done it once and for all. इतना है, ये अद्भुत बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार में ही सब कुछ पूरा कर दिया। And when you respond to his love, we have a fellowship to his love. और जब हम परमेश्वर के उस प्रेम को, जब हम रिस्पॉन्ड देते हैं, जब हम अपने तरफ से एक उत्तर देते हैं, तो हम उसके हम प्रेम के खिलाफ उत्तर देते हैं। And we become one part. और जब हम उत्तर देते हैं तो हम परमेश्वर के साथ एक भागीदार हो जाते हैं। And we become his son. और हम उसके बेटे बन जाते हैं। Okay, can I ask that brother to mute? डेविड क्या प्लीज आप म्यूट कर दें भाई को हमारे। Right? We have become one in this, and let us remind to celebrate. और अब हम परमेश्वर के साथ एक हो गए हैं, और हमें इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए, इसकी खुशी मनानी चाहिए। And when God said he has moved us from death to life, जब परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें मृत्यु से जीवन की ओर तुम्हें लाया है, so all our areas which did not have hope has hope. और जितने भी हमारे जीवन में ऐसे जो एरिया हैं या हालात है जहां पे बिल्कुल आशा नहीं है, उन सभी एरिया में आशा आ सकती है। From all sickness he has made it wellness. प्रभु ने उस सारी बीमारी से हमें पूरी चंगाई में और तंदुरुस्ती में प्रभु ने हमें कर दिया है। From fear and timidness, boldness. और परमेश्वर ने हमें डर से हटा के हमें बलवंत किया है। From problems to solutions. परमेश्वर ने हमें जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से हटा के परमेश्वर ने हमें उत्तर दिया, उन प्रॉब्लम से सॉल्यूशन दिया है परमेश्वर ने। And let me tell you, I have tasted it physically in all these. और मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के इस प्रेम को चखा है। Because of God's boldness and enjoying his love. और परमेश्वर के उस प्रेम को मैं अनुभव कर रहा हूँ, परमेश्वर के उस प्रेम को मैंने अनुभव किया परमेश्वर की उस बोल्डनेस के कारण। Yeah, thank you. So in my experience, after tasting the Lord, many of my areas, there are areas which fear are there, but many of my areas of fear has gone away. और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और उनको जानने के बाद मेरे बहुत सारे जीवन में एरिया थे जहां पे डर था, और प्रभु को जानने के बाद बहुत सारे एरिया परमेश्वर ने डर को भगा दिया। Let me share you real examples. When my mom met with a terrible accident, hit by a sports car. और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब मेरी माता को जब उनका एक्सीडेंट हुआ, I was a kid. I said, if there is a living God, come. और मैंने तब बोला, अगर कोई जीवित परमेश्वर है, आए वो। Oh, amazingly God sent many people to help. और परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से बहुत सारे लोगों को खड़ा किया उनको मदद करने के लिए। When I needed wisdom at work, problems used to come and said, Lord, your word says, if anyone lack wisdom, ask of me and I will give it generously. I need it. और जब मेरे को अपने काम काज में बुद्धि की आवश्यकता थी, तो मैंने परमेश्वर को बोला, प्रभु आपके वचन में लिखा है कि जो आपसे बुद्धि मांगेगा आप उसे देंगे, और परमेश्वर ने मुझे वैसा ही बुद्धि दिया। Oh, the first time I knew this word had life was through a physical healing. और सबसे पहले मैंने जब परमेश्वर के वचन को सच्चा जाना, तो कैसे जाना कि जब मैंने एक चंगाई को देखा जीवन में होते। I used to suffer from sinus and migraine by eating chocolates or any citrus. और मेरे को माइग्रेन होती थी और साइनस की भी दिक्कत थी, क्योंकि मैं चॉकलेट बहुत खाता था।
So the moment, and one day I said, hey, I hear about this great love, and they say that by his stripes I'm healed. और मैंने परमेश्वर के इस बहुत प्रेम को सुना था कि प्रभु का प्रेम बहुत अद्भुत है, और ये भी सुना था कि प्रभु के कोड़े खाने से चंगाई मिलती है। Oh God, if you've shown your love, I want that love and I want to stand. और मैंने बोला कि अगर प्रभु अगर आपने वैसा प्रेम दिखाया है तो मार खाई है आपने, तो मुझे भी चाहिए वो प्रेम जो आपने दिखाया है। So it happened in 1999. और 1999 में ऐसा ही हुआ, Even in 2021, it's still alive. और 2021 में भी आज ही वो प्रेम वैसा ही है। When you enjoy love, there is joy. और जब आप परमेश्वर के उस प्रेम को अनुभव करते हैं तो आनंद की भरपूरी होती है। And many of your hearts today, there is a kindle of this joy in a different level. और आज आपके मनों में वो आनंद फूट रहा है प्रभु की दया से। When you enjoy love, there is always joy. और जब आप उस प्रभु के प्रेम को आनंद मनाते हैं, जब आप उसको अनुभव करते हैं अपने जीवन में, तो हमेशा वहां पे आपके दिल में आनंद उत्पन्न होता है। I've told you that maybe last week I testified. I used to stay in a notorious place for 5+ years. और मैं एक बहुत ही खतरनाक जगह पे रहता था 5 से भी ज्यादा साल। And God was my shield. मगर परमेश्वर मेरे को वहां पे संभालने वाला मेरा कवच था। I even slept in a house without locking the main door, keeping the key outside. मैं ऐसे भी घर में सोया हूँ जहाँ पे बिना मैं ताला लगाए दरवाजा बंद किए सोया हूँ। But God brought people to remind at the right time. और परमेश्वर टाइम आफ्टर टाइम परमेश्वर सही लोगों को लाता था मुझे याद कराने के लिए। Was that foolish? Yes. But even in our foolishness, God has showed love. और क्या वो बेवकूफी थी? हाँ, शायद हो सकती है, मगर परमेश्वर हमारे बेवकूफियों में भी अपना प्रेम हमें दर्शाता है। Oh, when you're in love, you take boldness of faith. You take actions of. और जब आप प्रेम में होते हैं तो आप विश्वास वाले और ऐसे कदम लेते हैं जो संभव नहीं होते ऐसे। And one of that love response was me coming to Delhi in 2010. और मेरे लिए एक वो परमेश्वर के प्रेम के जो रिस्पांस के तौर पे वो था कि जब मैं दिल्ली आया। Right, the pastor Neeraj has seen it. और पास्टर नीरज को पता है। And Alex has seen it. और ब्रदर एलेक्स को भी पता है, इस बात को जानते हैं वो भी। It would tear my head that 21st century was not 21st century in Gurgaon in 2010. और मैं सोचा नहीं था कि 21st सेंचुरी में गुड़गांव में मैं 2021 में होऊंगा। There was only one main road, which was that NH. और उसमें से can you say it again? The only main road in Gurgaon was that NH road, national highway. और एक ही रोड था वहां पे, वो NH रोड था गुड़गांव में। There was no auto. कोई ऑटो नहीं था। From my house to come to Neeraj's house, I had to take only 6 autos. और मुझे सिर्फ 6 ऑटो बदलने पड़ते थे पास्टर के घर आने तक। And I have to sit at the back of an auto in one place. और मुझे ऑटो के पीछे बैठ के एक ही जगह पे सरक के बैठना पड़ता था। But when we enjoyed with the Lord, it was all joyful. और क्योंकि परमेश्वर को जब हम उसको आनंद मनाते हैं हमारे परमेश्वर को, तो हर चीज आनंद हो जाती है। Many times we may not see it when we act in faith. कई बार जब हम विश्वास में हम कदम लेते हैं, कई बार हम ये चीज देख नहीं पाते। Many of you are going to respond to this love again today after this. बहुत आप में से बहुत आज इस प्रेम के खिलाफ आज आप रिस्पॉन्स करेंगे परमेश्वर को। Do not fear. और डरे मत। Because love drives all fear. क्योंकि परमेश्वर का वो सिद्ध प्रेम हर भय को निकालता है। I have eaten this wonderful word which God has given me. मैंने इस वचन को खाया है जो परमेश्वर ने मुझे दिया। I have seen success. मैंने तरक्की देखी है। I freely got and freely give. और मैंने मतलब अच्छे से मुझे मिला है, और मैंने बहुतायत से मेरे को मिला है, बहुतायत से मैंने दिया है। My dear sisters and brothers, respond to this love. और मेरे भाइयों और मेरे बहनों, इस प्रेम को आज इसका रिस्पांस करें, इस प्रेम का जो प्रभु आपसे करता है। Respond with me together because we are मेरे साथ online. मिलके आज परमेश्वर को रिस्पॉन्ड करें। Let it is a time to respond boldly. और ये ही समय हमारा परमेश्वर को रिस्पॉन्ड करने वाला समय हो। We're going to respond, pray and close with this. हम प्रार्थना करेंगे और हम रिस्पॉन्ड करेंगे परमेश्वर के इस प्रेम। Are you all going to respond with me to क्या respond? आज आप मेरे साथ मिलके परमेश्वर को रिस्पॉन्ड करेंगे कि परमेश्वर के प्रेम के खिलाफ? When we respond to this pure love, और जब हम इस प्रेम जो प्रभु ने हमसे किया इसके खिलाफ जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, next week you're going to tell me testimonies that there is a unique joy and peace that I enjoyed, brother.
और जब आप ऐसा करेंगे तो आप अगले हफ्ते आप गवाही देखेंगे और आप मुझे बताएंगे कि यार Everyone. ऐसी गवाही देखी मैंने। Yes, सभी लोग। let's through the eyes of faith think for a moment and respond. और आज अपनी उस विश्वास की आंखों से देखें और परमेश्वर को बोलें ऐसा होगा प्रभु आपके लिए, क्योंकि आप प्रेम करते हैं मुझसे। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, Oh, for your pure love. आपके उस अनमोल प्रेम के लिए प्रभु। And through action, you did it on that cross. आपका धन्यवाद, आपने अपना जीवन दे दिया उस प्रेम के कारण उस Oh, क्रूस पर। as we saw, every part of your body was smitten with blood. और हम प्रभु हमने देखा प्रभु, आपने अपना लहू, अपना शरीर कैसे प्रभु आपने दे दिया हमारे लिए। And those who believe in your love और जो प्रभु आप में और आपके इस प्रेम में विश्वास करते हैं प्रभु, can enjoy life. वो बहुतायत का जीवन पाते हैं परमेश्वर। Jesus, we surrender again and again to this love. परमेश्वर में अपने आपके उस प्रेम के आगे अपने आप को अधीन कर लेते हैं आज प्रभु हम। Let us be loud and clear. Universe, hear me out. I surrender to this love. आज दुनिया सुन ले, और ये जो दुनिया है और जो भी क्रिएशन है सारी सुन ले कि मैं अपने आप को परमेश्वर के उस प्रेम के अधीन करता हूँ। Thank you, Lord, that this love is in me. तो प्रभु आपका धन्यवाद, ये प्रेम प्रभु आपने मेरे अंदर रखा है, डाला है। And thank you, Lord, my love is in you. और परमेश्वर आपका प्रेम, मेरा प्रेम प्रभु आपके अंदर है प्रभु। हालेलुया। Fill me more. प्रभु मुझे आज और भरे परमेश्वर। Soak in it more. परमेश्वर और प्रभु गहराई से परमेश्वर भर दें प्रभु अपने प्रेम से। And let it flow out of me more than I can think or imagine. और परमेश्वर आपका प्रेम मेरे अंदर से आज प्रभु निकले परमेश्वर। हालेलुया। Oh, blessed be your name. ओ धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद। Hallelujah. हालेलुया। भले परमेश्वर आपका धन्यवाद, In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमेन। Celebrate this love in great और dimension and let me know. Okay. और इस प्रेम को आप आनंद मनाएं, खुशियां मनाएं प्रभु के प्रेम के लिए, और मुझे बताएं वो गवाहियां जो होने वाली हैं। As encouragement. और आपको एक उत्साहन के साथ How this love relationship increases. और मुझे जरूर बताएं कि ये प्रेम आपका जो परमेश्वर का रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा। In Jesus' name, all glory to him. और सारा आदर हम प्रभु को देते हैं यीशु नाम से। Thank you. आमेन। थैंक यू। Now I'd like to invite Pastor Neeraj to give closing remarks and vote of thanks. Okay. So, first of all, I want to really thank God for making a way for all of us to gather online. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज के सुंदर समय के लिए ये प्रभु ने जो मौका दिया हम सभी को इकट्ठा होने का। And praise God for the wonderful time of worship that Sandeep led us in. और प्रभु का धन्यवाद जब हमने आराधना में भाई संदीप के साथ आज प्रभु को आराधना दी हमने जो। And also for that really heart, you know, the message, that sermon, edifying sermon from the heart from Jason. और जो बहुत ही अच्छा वचन जो हमारे भाई जेसन ने अपने दिल से जो निकला हुआ दिया। And you know, I would encourage all of you, please read Arun's blog on which he has posted on our church Facebook page, Instagram page, if you haven't done that already. और हमारे ब्रदर अरुण ने बहुत ही अच्छा एक ब्लॉग लिखा, आप जरूर अपना समय निकाल के उसको पढ़ें। In the beginning, he gave a, you know, can you be quiet, please, kids? Okay. And you know, in the beginning, he gave us a synopsis of that blog when he started this meeting. और स्टार्टिंग में जब हम हमारे आज की जो मीटिंग स्टार्ट हो रही तो ब्रदर अरुण ने उस जो ब्लॉग लिखा उसके बारे में कुछ चीजें आज बताई थी हमें। But I think something we just slightly will like this. Yeah. So you know, Sandeep had Arun in the beginning. He had shared you know the crux of his blog. और जो हमारे ब्रदर अरुण ने स्टार्टिंग में कुछ चीजें बताई थी जो उस ब्लॉग में जो उन्होंने लिखी थी। And so I would encourage you to please take time and read that blog. और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि जरूर समय निकालें और उस ब्लॉग को पढ़ें। Yeah. Okay. And so you know
so often we can have this thought, why would this be called Good Friday? और कई बार हमारे मन में ये विचार आता होगा कि हम इस गुड फ्राइडे क्यों बोलते हैं, अच्छा भला या अच्छा शुक्रवार क्यों बोलते हैं उसको? See, because the fact is this: if Good Friday wouldn't have happened, then Resurrection Sunday wouldn't have happened. मगर सच्चाई ये है कि अगर गुड फ्राइडे ना होता तो जो रेजरेक्शन संडे है, जो जिस दिन जो तीसरे दिन प्रभु जो मुर्दों से जी उठे, वो ना होता. So it is clearly what the Lord just went through on that Friday so many centuries back. Clearly that was painful, but it brought about such an amazing salvation for mankind that now on hindsight we look and we call it Good Friday. और क्योंकि यीशु मसीह ने इतना अद्भुत कार्य कर दिया गुड फ्राइडे के दिन और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, और तभी हम जब आज हम गुड फ्राइडे को देखते हैं तो हम कहते हैं कितना ही अद्भुत कार्य किया प्रभु ने. If the Lord wouldn't have tasted death on our behalf for our sins, we could not have been able to partake of His abundant eternal life. अगर प्रभु यीशु ने अगर उस मौत को ना चखा होता हमारे लिए, तो आज हम इतनी उस जीवन को, बहुतायत के जीवन को अपने जीवन में ना देख रहे होते. If like even Sandeep in worship, leading worship, he had mentioned that He who knew no sin became sin for us, that we would become the righteousness of God in Christ. और जैसे हम रात में भी देख रहे थे वचन में, जैसे तो हटाना अपना में मौका मानना, वचन में जैसे लिखा है कि यीशु मसीह जो पाप नहीं जानता था वो हमारे लिए पाप बना ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन पाए. David, can you please mute anyone who's please, whose sound is coming right now? Please see to it, David, that you please keep people muted. Thank you. And so He who knew no sin became sin for us, that we might become the righteousness of God in Christ. जो यीशु मसीह जो पाप ना जानता था वो हमारे लिए पाप ठहरा ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन पाए. And so there's so much happened on that cross, because of which we have this abundant eternal life of God. उस क्रूस में इतना ही अद्भुत कार्य हुआ जिसके कारण आज बहुतायत का जीवन हमारे पास है. And praise be to God that sin could not, death could not hold the Lord Jesus, because He had never sinned. And so on the third day He raised up and He ascended and lives and reigns forevermore. और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि यीशु मसीह के ऊपर जो पाप है वो भी उसके ऊपर अधिकार ना जमा सका, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और वो आज महिमा के स्थान पे दाहिनी ओर परमेश्वर के बैठा है. We need to close this door, please. I can't. Okay, yeah. So we so praise be to God that the resurrection of our Lord Jesus, which we will be so much more celebrating on this Sunday. It was a proof that Lord Jesus, He died for our sins, not for His own sins, and that is why now we can have this abundant eternal life of God. और जब हम इस एतवार को परमेश्वर के जी उठने को सेलिब्रेट करेंगे तो हम इस बात को मना रहे हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और वो तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा. इस चीज को हम सेलिब्रेट करेंगे. And the reason that He rose from, and the fact that He rose from the dead should give us so much hope, because that shows that He didn't die for His sins, He died for our sins. Because He died for ours, not His own, death couldn't hold Him, and He rose up on the third day. क्योंकि lives forever. क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, अपने पापों के लिए नहीं. और तभी ये बहुत ही अद्भुत हमें आशा देती है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और मौत यीशु मसीह को पकड़ना पाई. यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, और ये बहुत ही अद्भुत मतलब हमें एक आशा और होप देती है. And I was so happy to see that both in Arun's blog and in Jason's preaching, they both so much highlighted that the cross, the work of the cross, the finished work of the cross is a very profound and powerful demonstration of the love of God for humanity. और दोनों भाइयों ने, ब्रदर अरुण ने और जेसन ने, क्रूस को सेंटर में रखा और उनके बारे में बोला, क्योंकि उस क्रूस पे हम परमेश्वर के प्रेम को देते हैं और इतना पावरफुल काम उस क्रूस के द्वारा हुआ है. And so any time that you're wondering, does God really love me, just think of the cross and you will have no doubt how much God loves you. और जब अगर आपको कई बार संदेह होता है और या पूछते हो अपने आप को कि क्या प्रभु मुझसे प्रेम करता है, तो मैं यही बोलूंगा कि उस क्रूस की ओर देखें और बिना किसी संदेह के ये जान लें कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है. Today morning someone sent me a very nice WhatsApp
message. और मुझे आज सुबह एक व्हाट्सएप मैसेज, बहुत अच्छा एक मैसेज किसी ने भेजा, And on that was a picture of the cross, and on top of that was written, "I love you so much." और एक क्रूस की पिक्चर थी उसमें, उस मैसेज में ये था, एक पिक्चर थी क्रूस की और ऊपर लिखा था यीशु मसीह ऊपर थे और उस क्रूस पे लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। And below the picture was written that no one has ever said "I love you" to humanity in a more profound way. और नीचे लिखा था उस फोटो के कि इतना अद्भुत तरीके से किसी ने भी आज तक इंसान को ये नहीं बोला कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। And really, it's true. You know, if you look at just the picture of the cross, it's it's really shouting and screaming that God loves us so much. It's the most profound declaration of love from one to another. और जब आप क्रूस को देखते हैं तो ये सबसे मतलब अद्भुत चीज है, जिसको देख के ये चीज पता चलती है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो कितना अद्भुत है हमारे लिए। Hallelujah. हालेलुया। And so, Good Friday is so good because if Good Friday wouldn't have happened, Resurrection Sunday wouldn't have happened. और ये जो गुड फ्राइडे इतना अच्छा इसलिए क्योंकि अगर गुड फ्राइडे ना होता तो यीशु मसीह तीसरे दिन में से जिंदा नहीं होते। And everything that we have because of putting our faith in the gospel of Lord Jesus Christ, everything we have is because of that success of of Calvary. और जो भी हमारे जीवन में आए, बहुतायत का जीवन जो है, जो जितनी भलाइयां जो हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उस क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने जो कर दिया कार्य। And another good thing that Jason said, kept saying was that please, you have to personalize what the finished work of the cross has accomplished for you. You have to personalize, you have to verbalize, you have to personalize for yourself. और जैसे ब्रदर जेसन भी बोल रहे थे कि ये जो क्रूस का कार्य ने जो आपके जीवन में या हमारे जीवन में किया है, इसको अपना पर्सनल ले लें इसको और अपने मुंह से बोलें इस चीज को, और आप अपने मुंह से डिक्लेयर कर सकते हैं इस चीज को। And so it is not just important for us to know what Jesus did on the cross, Lord Jesus did on the cross for us, but we have to verbalize, we need to personalize, and then we will see the power of the cross at work in and through us. सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, मगर हमें अपने शब्दों से भी परमेश्वर को जो उसने किया ये बात करना जरूरी है परमेश्वर से, और मुंह से बोलना भी जरूरी है, अंगीकार करना जरूरी है, और आप देखेंगे उस प्रेम में आगे बढ़ते हुए परमेश्वर के साथ और चीजों को होते हुए देखेंगे। So in Romans 10:9 and 10 we are told that with the heart we believe resulting in righteousness, but with the mouth we confess resulting in salvation. और रोमियो की पुस्तक में लिखा है जब हम अपने दिल में विश्वास करते हैं तो वो हमारे लिए धार्मिकता होती है, उसके लिए जब हम विश्वास करते हैं, जब हम मुंह से उसको अंगीकार करते हैं तो हमें उद्धार में आगे ले जाती है। And so, precious people of God, I encourage you, the things that you have read in Arun's blog, the things that you have heard from Jason, brother's sermon, please, you need to go back with your notes and commune with the Lord over those notes if you really want to see benefits. और अगर आपने आज ब्रदर अरुण के ब्लॉग को पढ़ा है या आज मैसेज को सुना है तो मैं यही आपके ऐसा निवेदन करूंगा कि आप आज प्रभु के पास जाएं इसको लेके और आप इसका बेनिफिट उठाएं। And speak to the Lord. The facts that were presented by brother Jason about the death, resurrection, and ascension of Lord Jesus Christ, these facts that were presented to you, please commune with God over these facts. और ये जो आज ब्रदर जेसन ने जो आपसे वचन बांटा है, जो परमेश्वर की मृत्यु का और प्रभु के जी उठने का और क्रूस का, आप इसको परमेश्वर से बातचीत करें इससे और आप इसका फायदा उठाएं। We have to verbalize and commune with God over these facts. We need to personalize that this has happened for me. The Lord Jesus has died on that cross for me, and that is why now, by putting my faith in the finished work of the cross, I have abundant eternal life. और हमें ये अंगीकार मुंह से करना बहुत जरूरी है, यीशु मसीह मेरे लिए मरा और मेरे को पापों से प्रभु ने छुड़ाया, और दूसरा कि हमें अपना मतलब पर्सनल बनाने का बहुत जरूरी है कि प्रभु आपने मेरे लिए मेरे पापों के लिए जान दी। So many times, we can stop at confessing, okay, God so loved the world. God so much loved the world, that he gives only begotten son, that whoever shall believe in him shall not perish, but have eternal life. John 3:16. और कहीं जैसे वचन में लिखा है कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। But you see, in that God so loved the world, I'm there also. और कई बार उसमें जैसे लिखा है परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, उस जगत में मैं भी हूँ।
So it's good to personalize. Lord, God has loved Neeraj Malik so much that he has sacrificed his son. और हमें बोलना जरूरी है कि परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने बेटे को उस क्रूस पे दे दिया। Yes. God has so loved Neeraj Malik. God so loved me that he has put my sins on Jesus Christ, Jesus, so that me Neeraj Malik get abundant life. Hallelujah. परमेश्वर ने मेरे लिए अपने बेटे को भेजा और उस मेरे लिए परमेश्वर ने क्रूस पे उसने मेरे पापों को उठाया और अपनी जान दी ताकि मैं एक बहुतायत का जीवन में परमेश्वर के साथ पा पाऊं। And you know, it's so important to verbalize, confess, and personalize बहुत जरूरी what है the cross has accomplished, what God has accomplished for what He has made available for me. और ये बहुत जरूरी है कि अपने लिए जो प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पे किया, मेरे लिए क्रूस पे किया, उसका अंगीकार करना और उसको मुंह से बोलना जो परमेश्वर ने किया है उस क्रूस पे। Christ is the high priest of my confession. तो प्रभु यीशु मसीह हमारे कन्फेशन का हम जो जब हम बोलते हैं तो वो परमेश्वर हमारा प्रीस्ट हाई प्रीस्ट है उसका। If you want to benefit from the high priestly ministry of Lord Jesus on your behalf, you have to start agreeing with Him through confession. और जब अगर आप उस चाहते हैं कि वो आपका जो महायाजक है यीशु मसीह कि आप उसका बेनिफिट या उसका फायदा लेना चाहते हैं तो आप उसके साथ हाँ भरें, उसकी बातों के साथ सहमत हों। Confession is not just confession of sin. Confession also is when I agree with my mouth with the facts that God has spoken. और सिर्फ अंगीकार करना पापों का नहीं होता, मगर जब हम अंगीकार करते हैं जो चीजें उसने बोली हैं, जब हम उसके साथ सहमति करते हैं, अंगीकार करते हैं उन चीजों का, तो हम बेनिफिट ले पाते हैं और अपने मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। You know, someone once asked an evangelist that, what happens, will people who are famous for doing good works, but they didn't believe in Christ, will they go to heaven or not? और किसी ने एक प्रभु के दास से पूछा कि जो लोग भले काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, क्या ये लोग स्वर्ग जाएंगे? And of course, names were taken like Mother Teresa or Mahatma Gandhi, and so many names were taken, and this question was asked to the evangelist. और बहुत सारे नाम लिए गए, मदर टेरेसा का जैसे लिया गया, महात्मा गांधी का लिया गया, और यही सवाल उस प्रभु के दास से पूछा गया। And this man gave a very good answer. He said, "Heaven is not for good people. Heaven is for perfect people." और उसने बोला कि जो स्वर्ग है ये भले लोगों के लिए नहीं, ये सिद्ध लोगों के लिए, जो परफेक्ट लोग हैं उनके लिए। And he said, "It's not a perfection that I can attain to. It is a perfection that is applied to me by faith when I put my faith in the finished work of the cross." और उसने बोला कि ये जो सिद्धता है या परफेक्शन है, ये मेरी अपनी नहीं है, मगर ये सिद्धता तब आती है जब मैं अपना विश्वास मसीह पे डालता हूँ। So it is, when I listen to the gospel, the good news of my Lord Jesus Christ, and I confess my sins and I embrace the Lord Jesus as the Lord of my life, His perfect robes of righteousness are imputed to me, and that is what makes me acceptable, and I'm a son, and makes me a son of God. और जब मैं अपने पापों का अंगीकार कर लेता हूँ, मान लेता हूँ और प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ, तो उसका वो धार्मिकता का चोगा मेरे ऊपर डालता है परमेश्वर, और तब मैं परमेश्वर की नजर में सिद्ध हो जाता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. So it is not a righteousness of my own which I've attained through my works. It is a righteousness that's come to me by faith, because I put my faith in the finished work of the cross. And God looks at me, and God says, "You are justified," and God declares me righteous one, the righteous one. और ये जो धार्मिकता ये मेरे भले कामों के कारण नहीं आती, मगर ये जो धार्मिकता है जब मैं अपना विश्वास परमेश्वर की ओर डालता हूँ, और जब परमेश्वर अपना धार्मिकता का चोगा मेरे ऊपर डालता है, तो ये जो धार्मिकता है परमेश्वर की, ये जो सिद्धता है तब आती है। Hallelujah. Hallelujah. So this is my encouragement to you today. और यही मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ इसके लिए, that please take time to verbalize the facts of the finished work of the cross. Take time to personalize all the facts with regards to the finished work of the cross, and then you will find the power of the cross of Christ transforming you and transforming many through it. और मैं तभी आपको बोल रहा हूँ कि ये जो क्रूस पे प्रभु ने किया है, इसको अपने लिए ले लें, इसको अंगीकार करें, बातचीत करें परमेश्वर से, और जब आप ऐसा करेंगे तो ये आपके जीवन को बदलेगा और आपके द्वारा बहुतों के जीवन को बदलेगा। So what was the secret of Paul's amazing life? और ये पौलुस जो प्रभु का दास था, जिसका इतना अच्छा जीवन था, क्या सीक्रेट था उस दास का? He was really passionate and zealous about the finished work of God.
क्योंकि जो पौलुस था वो प्रभु के उस मसीह के उस क्रूस के कार्य के लिए इतना गंभीर था और वो बहुत ही मतलब पैशनेट था उस कार्य के जो प्रभु ने क्रूस पे किया। At one place he says, I want to know nothing among you except Christ and him crucified. और उसने एक जगह पे बोला कि मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता, बस मसीह और मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना जानना चाहता हूँ। His life was a very cross-centered life. क्योंकि जो पौलुस का जीवन था वो उसके जीवन में जो क्रूस था प्रभु का वो बिल्कुल बीच में था उसके जीवन में। And you know, the cross, you know, Paul's life is a powerful demonstration of how great a salvation has been made available for mankind if they say yes to the finished work of the cross. और Personally. पौलुस का जीवन ये दर्शाता है कि ये जो उद्धार हमें मिला है ये बहुत ही अद्भुत उद्धार है, तो ये पौलुस का जीवन दर्शाता है ये चीज। And you know, the power of the cross is not really just by thinking about the message of the cross. और जो क्रूस का जो समाचार है, ये जो कार्य है, ये शक्ति है, ये सिर्फ इस क्रूस के बारे में सोच के होने वाला कार्य नहीं है। We need to declare what the death, resurrection, and ascension of our Lord Jesus Christ has accomplished for me personally. और हमारे लिए जो हमारे लिए जो प्रभु यीशु के क्रूस ने किया, उसके मारे जाने, उसके गाड़े जाने, उसके तीसरे दिन जी उठने से जब उसको हम डिक्लेयर करते हैं, मुंह से घोषणा करते हैं, उसको विश्वास करते हैं, घोषणा करते हैं, तो वो करता है हमारे लिए कार्य। The proclamation of the finished work of the cross by, you know, with a heart that is so assured of the message, that releases the power of the cross onto transformation, onto great kingdom breakthroughs. और जब हम जो क्रूस का कार्य जब हम उस पर दिल से विश्वास करते हैं और जब हम उसके मुंह से घोषणा करते हैं, तो वो बड़े-बड़े काम वो बदलाव लाता है और वो अद्भुत चीजें करता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, प्रेज। The Lord has accomplished for us and made available a rich salvation for us with everything pertaining to life and godliness through the success of Calvary. प्रभु यीशु मसीह ने वो धार्मिकता का जीवन हमें हमारे लिए दे दिया है, रख छोड़ा है, क्योंकि जब उसने जो क्रूस के कार्य के द्वारा। It's a comprehensive work. और ये बहुत ही अद्भुत काम है, ये हो चुका है। And take some time this weekend to think about what does the Lord just mean when he said it is finished. और ये समय लें इस वीक में और इन दिनों में कि जब यीशु मसीह ने, और सोचें इस बात को कि जब यीशु ने बोला कि सब कुछ पूरा हुआ, तो उसका क्या मतलब था। Please, this is my challenge to you at the end of our service today. मैं आपको इसकी चुनौती आज देना चाहता हूं कि आप इस चीज को आज ले जाएं और सोचें इस हफ्ते में। Please take time to dig deep and investigate what did Lord Jesus mean when he said on that hanging on that cross, it is finished. और मैं चाहता हूं कि आप इस हफ्ते अपना समय लें और जब इस बात को खोजें, जाने बाइबल पढ़ के या कैसे भी, और आप जाने के यीशु ने क्यों बोला जब अंत उसके जो शब्द थे कि सब कुछ पूरा हुआ। And once again, you know, I really want to thank each one of you for taking your precious time and attending the online Good Friday service. तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे भाई बहनों ने आज अपना समय निकाल के गुड फ्राइडे की सर्विस में अपना समय दिया, अटेंड की। And I also want to thank Arun for the MC work, Sandeep for leading our worship, Jason for that wonderful sermon, and David for you know, all the technical work that he does to make the online stuff available for us. और मैं धन्यवाद करने रहता हूँ सभी का, अरुण भैया का, डेविड का, जेसन भैया का और संदीप का। And I want to thank my father for, you know, blessing us with an opening prayer. और मेरे पिता का, जिन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई किया। And now I want, as we end, I want to request Sandeep to lead us in closing with a song. और हम अंत में एक गीत गा के हम समाप्त करेंगे। And you know, when you are singing this song, please think of three things. Please. One, what are you going to thank God for or praise God for because of the sermon you heard today from our brother Jason? और आज जब आप मैं जब समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इन तीन चीजों पे आज ध्यान दें। और सबसे पहले कि जो आज आपने वचन सुना, आप किस चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उस वचन को सुन के। Right. And in fact, you know, today's sermon also and any other sermon you ever hear, please, when the sermon is over, you know, think of three things always. और जब भी आप कोई वचन सुनते हैं परमेश्वर का या शब्द सुनते हैं, तो हमेशा तीन चीजें याद रखा करें। Number one, what can I praise God or thank God for because of the sermon that I heard?
और ये चीज सबसे जरूरी है कि मैंने आज प्रभु आपका ये जो वचन सुना, मैं आपको मैं धन्यवाद किस चीज के लिए करूं, और आपका आदर या महिमा आपको किस चीज के लिए दूं? Is there anything to confess because of the sermon that I've heard? क्या प्रभु ऐसी कोई चीज है जिसके लिए मुझे माफी मांगनी है, क्षमा मांगनी है आपसे, कन्फेस करना है, अंगीकार करना है? Number 3, how am I going to apply this sermon? In other words, is what one or two things I will do differently or pray differently because God spoke to me through this sermon? क्योंकि आज परमेश्वर ने मुझसे बात की है, मैं कौन सी एक या दो चीजें जो अलग करना चाहूंगा अपने जीवन में परमेश्वर, क्योंकि आज आपने मुझसे बात की। So yeah, so that's my encouragement to say, even as Sandeep leads us in a heart response song, sing along with him and also think about these 3 things. God bless you, Rich. प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और ये आपका समय है, आप इस समय आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं और अपने दिल से परमेश्वर के जो वचन आपने सुना रिस्पॉन्ड कर सकते हैं परमेश्वर को। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना तू राजाओं का राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना हो सना तू राजाओं का राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान दिया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना तू राजाओं का राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना तू राजाओं का राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना तू राजाओं का राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, है प्रभु हमारा
अच्छा क्योंकि यीशु अच्छा है यीशु अच्छा है ओ यीशु अच्छा है मेरे लिए यीशु अच्छा है वो भला यीशु अच्छा है वो मुझसे प्यार करता है ओ यीशु अच्छा है मेरे लिए oh God is so good oh God is so good oh God is so good he's so good to me oh God is so good he's so good to me क्योंकि यीशु अच्छा है मेरे लिए हालेलुया हालेलुया थैंक यू संदीप और अब हम I'll just give a benediction. May the Lord the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the sweet communion of the Holy Spirit goes now and forever. अब पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हमारे साथ होते रहे।